أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear friends and fellow students and my colleagues and those who are interested in learning the medicine in a conceptual way, so the conception should be clear. Actually, the hemolytic anemias, we are talking about the hemolytic anemias, and this is session 3. Now, this is very important topic. In certain situations, you will in the future you will come across with the problems with this type of a problem, with the hemolytic anemias. I am taking bit by bit because it's a very long topic. It's about you can say it is 110 minutes, 120 minutes rather. It should be taken rather this. But if you want to clear it 100%, you have to go for 3-hour session to clear it. So I have actually divided into sessions. Previously I have talked about the hemolytic anemias, when you will suspect the hemolytic anemias. For example, a 31-year-old technician of Pakistan Navy presented with effort intolerance and lethargy for the last 1 year. This is the long case which was presented in 2019 in FCPS examination. It is a true case. Now, he was prescribed hematinics without clinical improvement because the anemia was not, you can say, moderate. He was supposed to be given the hematinics, and he had done history. He has given the history of the blood transfusion 6 times in the last 2 years. He said that the anemia is more than mild, and it will cause him effort intolerance, the lethargy, and that's why they have transfused the PEG cells 6 times in the last 2 years. One elder sister died 20 years back because of some blood disorder. They don't know the nature of the blood disorder. At the age of the 15 years or 16 years, she died. One younger brother was on the regular blood transfusion since childhood. His parents were relatives, first-degree relatives. On examination, temperature was 98, pulse was 110 per minute, and it is bounding pulse, and his blood pressure is 110 by 68, and anemia was positive. The GABP was higher, liver 3 centimeter, and spleen was 7 centimeter palpable. Random blood sugar was 180 milligram. Urine DR increased, urinobillinogen. X-ray chest normal, and hemoglobin is 8 gram. Hematocrit was 24. The hemoglobin is reduced. The hematocrit is reduced 24. RBC is reduced, so it is anemia. The MCV is 78. It is slightly lower down. In this lab, this is 82 is normal. The MCH is 26. This is lower down, but MCHC is normal. Look, see here, it's 33. So it is a microcytic anemia, and slight hyperchromia is there. Because both parameters, MCH is not decreased, only MCHC is decreased. Total leukocyte count was 5,600, platelet was 5,40,000, and ESR was 87 millimeter per first hour. So say, what is your differential diagnosis? The thing is that the patient is anemic and you have to go for anemia. And there is strong history of blood transfusion himself, and same blood disorder is running in his younger brother,
and one sister was died in his teenagers, was died in teenagers. The family background of some blood disorder is definitely in evidence, and there's no doubt about it. So this is a presentation. The patient is actually slightly jaundiced and there is anemic and everything will be there. So it may be anemia, okay, then it may be iron deficiency anemia, it may be anemia of a chronic illness, hypoproliferative disorder, or it may be anemia of the due to some hemolysis. Because the hemolytic anemias are most probable chances, because there is a strong history in the family running. And he has got 6 times blood transfusion in the last 2 years without investigating the cause. What is the cause behind it, they don't know. But they are transfusing the blood to overcome the anemia. Because the third type of anemia are hemolytic anemias, so hemolytic anemias should be confirmed by other tests, and then the differential diagnosis of the hemolytic anemia should be enlisted here also. The diseases which is called hyperproliferative type of anemia, definitely chances are less, because MCV is 78 here. Look this, and there is slightly hypochromic also. There is no hypochromia in case of the hypoproliferative type of anemia, rather it is slightly more MCHC and MCH. So lab findings are against, and also their TLC is normal. It is B12 deficiency, total leukocyte count is very on the lower side, or it is more than 4,000, less than 4,000. Rather pancytopenic picture is seen. Here is a reactive thrombocytosis against the hemoglobin, which is reducing. So match it and decide it. Possibility of the hemolytic anemias, possibility of the aplasia of the bone, no. Chances of aplasia is less. Only one aplasia is possible, and that is the pure red cell anemia. It is possibility in that case, which is a case of the bone marrow depression. So this is how we go for the differential diagnosis. All should be written one by one and delete it afterwards. What other investigations are helpful? Family history, background, hemolytic anemia possible. If the other investigation will be serum reticulocyte count, or you can say absolute reticulocyte count to be done, plus the levels of in Pakistan haptoglobins can be done. If they are reduced and slightly the reticulocyte count are increased, it means that it is the hemolysis process which is going on. The liver function test should also be done to confirm it is hemolysis. Hemolysis before the liver, that is prehepatic type, means that it is a hemolytic type of jaundice. Same thing coming in my mind. Actually, what is the cause behind it? You have to go for the evaluation of the hemolytic anemias, and I have divided hemolytic anemia into hemoglobinopathy, disorders of the hemoglobin. That is, the hemoglobinopathies mean that there are disorders in the qualitative reduction of the hemoglobin, or thalassemic syndromes. These are again the same type of disorders of the hemoglobin in which the quantitative deficiency occurs in the globin chain, not qualitative, it is quantitative. Previously I have discussed about the hemoglobinopathies, in which I have said the sickle cell anemia and hemoglobin E disease or D disease or SC disease or combination of thalassemia with this. The chances are less here in this case, or more in this case, we must say. As far as the first one is concerned, hemoglobinopathies,
The thing is this, in this case, although the spleen is palpable, there is no doubt, and he is 31 years old. If it is sickle cell disease, it means the other system should be involved. And spleen should not be palpable. It should be reduced in size or no spleen. It means that autosplenectomy had been done in this patient, and the peripheral blood film will show the target cells, NSS, polycalcinosis, and Haynes bodies, etc. But in this case, if they are not present, it means that chances of the hemoglobinopathies are very less. देखिए इस तरह डिलीट कर रहे हैं इसको आप, तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है हेल्पफुल जो होगी वो अब आप आखिर में आ जाएंगे कि सीरम जो है ना आयरन का प्रोफाइल करके एक्सक्लूड करें इसको, आयरन प्रोफाइल कराएं और उसके बाद क्या करें, बिकॉज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया जो है या माइक्रोसिटिक एनीमिया 3 में डिवाइड हम करते हैं, हम जो करते हैं वो 3 में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो हम डिवाइड करते हैं वो किस में करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया माइनर या इंटरमीडिया, नॉट मेजर, एंड तीसरा जो है वो करते हैं हम सिडोब्लास्टिक एनीमियास में, जिनमें माइक्रोसाइटोसिस होता है बड़ा वाजे। इसमें कुछ में जो होता है वो हाइपोक्रोमिया होता है सीवियर, यानी MCH और MCH से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, वो आयरन डेफिशिएंसी में होता है। इसमें जो है ना थैलेसीमिया में जो है वो MCH में से एक कम हो जाएगा, दूसरा जो होता है वो नॉर्मल रहता है थैलेसीमिया माइनर में। और सिटोब्लास्टिक एनीमिया में तो MCH और MCHC को तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इसमें, तो वो तो नॉर्मल रहता है। तो फिर आप क्या करें कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म करा के स्टेन करा दीजिए क्रिजल ब्लू के साथ, मेथिलिन ब्लू के साथ सॉरी, एंड सिटोब्लास्टोसिस को एक्सक्लूड कर दीजिए। हिस्ट्री भी ले लीजिए, कोई ड्रग इंटेक या कोई हेरिडिटरी हिस्ट्री हो पुरानी, पता चल जाएगा। वरना बोन मैरो बायोप्सी से या पेरिफेरल ब्लड काउंट से आपको नज़र आ जाएंगे स्पेसिफिकली सिटोब्लास्ट। और जो है वो थैलेसीमिया को अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो आपको एक ही चॉइस रहता है कि आप क्या करें, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लें, लेकिन उसको पढ़ना भी तो आना चाहिए ना भैया, आपने करा लिया, अब आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये भी आना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे तो लाइकली डायग्नोसिस बन जाएगी। अभी यहाँ लाइकली डायग्नोसिस बन रही है कि अनीमिया बहुत ज़्यादा जो है ना, पहले माइल्ड था, अब सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, गया नहीं है, और उम्र भी निकल गई इसकी 31। तो ये जो है ना थैलेसीमिक सिंड्रोम होगा कोई, इसके चांसेस ये हैं कि ये स्टेट नहीं है, ये थैलेसीमिया माइनर के चांसेस कम है, इंटरमीडिएट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मेजर के चांसेस तो बहुत लेस है। लेकिन मेजर जो है ना इनकी फैमिली में रन किया है उसने, सही है। इस वक्त इस बंदे को जो है इंटरमीडिया है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अब ये बात लाने के लिए जो कैंडिडेट जिसको ये केस दिया गया था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो, क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट था इसके ऊपर, ठीक है ना। केसेस तो पहले से पता चल जाते हैं, तो आप नॉलेज कैसे जज करेंगे, इससे जज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई। तो हमारे जो 2 कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से किया जिस तरह हम चाहते थे, कि उनको तो पता था ये क्या है, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल एवोलेट करते हुए बिल्कुल लगा, उनको ज़ाहिर है उनको ऐसा लगा ब्लैंक हो गए वो, और बिल्कुल नए सिरे से उन्हें एवोलेट करना पड़ा हिस्ट्री टेकिंग से, और एग्जामिनेशन जो उन्होंने किया और हमने देखा 4 नंबर तक तो उनको मिल चुके थे। अब मज़ा ये था कि 2 नंबर और चाहिए तो उनको पास होने के लिए। तो वो जब डिस्कशन करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि उन्होंने किस तरीके से इसको लिया है। तो इसलिए जो है ना हर चीज़ पर बहस होती है। लोग कहते हैं कि टाइम बहुत ले लेते हैं, आप बताते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा ले, भाई टाइम तो लेना पड़ता है। अगर मैं नहीं इसको सही तरीके से बताऊंगा तो फिर ये तो वो हो गया कि आपने जो है ना स्लाइड शो किया और चले गए, काम ख़त्म। फिर हमने उनसे मैनेजमेंट पे बहुत लंबी चौड़ी बहस की और उन्होंने हमें जवाब दिए, काफ़ी हद तक जवाब दिए, बहुत यानी अच्छा डिस्कशन हुआ। वो दोनों कैंडिडेट में से पास हो गए, एक फेल हो गया। 3 कैंडिडेट हमें दिए गए थे, एक ने जो है ना वो वहाँ पहुँच नहीं सका।
असल में बात ये थी कि वीकनेस है कहाँ पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एवेल्यूएशन पे। जो आप लाइब्रेरी में बैठेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप क्लिनिक्स में काम करेंगे और फिर घर आके पढ़ेंगे या अपने सुपरवाइज़र से पूछेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है बताने में, तो फिर तो आप आगे चले जाएंगे और सीख लेंगे इस बात को कि हाउ टू डू इट। वरना FCPS को फिर पार्ट 2 को रिपीट करते हैं लोग। यहाँ 18 मरतबा इम्तहान दिया लोगों ने FCPS का। अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा ये कितना यानी ख़राब रिजल्ट होता है इसका। FCPS इंटरनल मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट एक ही दफ़ा आया है 27%, वरना उमूमन जो है ना एवरेज अगर अब तक लगाएं तो 10% से लेस है। ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर इतना कम रिजल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ब्रॉड बहुत है, हर चीज़ को याद रखना पड़ता है इसमें। तो अब ये मैंने ये कहा था कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है ना, ज़ाहिर है आपको जाने से पहले CBC को पता होना चाहिए था। तो इसमें हमने ये देखा हीमोग्लोबिन 12.6 है, MCV 60, ये माइल्डली एनीमिक है ये पेशेंट, फर्ज कीजिए, और MCHC 21.5 है इसका। अब ये देखिए इसमें ज़्यादातर जो चांस है वो ये कि MCV लो हो गया इसका, MCH जो है नॉर्मल है, लेकिन MCH जो है वो कम हो गया, तो एक पैरामीटर कम हुआ है विद माइक्रोसाइटोसिस। अनीमिया इतना सीवियर है ही नहीं इसमें वैसे ही, और रेटिकुलोसाइटोसिस हुआ है इसको। क्या परसेंटेज ऑफ लिकोसाइट जो है, मीन ये है 1.6 मीन जो आता है इसमें। स्लाइटली जो है ना ये मूव कर रहा है, यानी एक्टिव बोन मैरो है, इसका मतलब ये हुआ। एब्सोल्यूट काउंट निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली, अगर आपको काउंट चाहिए तो। और माइक्रोसिटिक इसमें आए इतने परसेंट थे, हाइपोक्रोमिया इतने परसेंट थे, और इसमें इन्होंने पूरा यानी डिटेल दिखी। आयरन के लेवल ये थे, ट्रांसफरीन के लेवल ये मैंने आपको बताया, कराने पड़ेंगे। आयरन प्रोफाइल इसके साथ बढ़ाना पड़ेगा। अहम तीन चीज़ जो थी वो LFT थी। LFT के अंदर इसके अंदर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया आया, अनकॉन्जुगेटेड, और लिवर फंक्शन टेस्ट या लिवर एंजाइम जो थे वो नॉर्मल आए इसमें, वो नॉर्मल थे। तो फिर क्या करें? तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के देखें, तो इसको इंटरप्रिटेशन में आना चाहिए। इसको आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वेरिएंट्स हैं जो कॉमन हैं, वो ये लिखे गए हैं, और इसको जो है ना वो डिज़ाइन किया जाता है ग्राफ पेपर पे। तो हीमोग्लोबिन A जो होता है, जो नॉर्मल अडल्ट हैं उनमें 95 to 98% होता है। फर्ज कीजिए ये हीमोग्लोबिन A कम हो जाता है, उसकी जगह हीमोग्लोबिन A2 बढ़ जाता है। नॉर्मली तो 2 to 3% होता है, और ये बढ़ के 5% आ जाता है। अगर ये 5% आ जाता है तो इसका मतलब कि ये थैलेसीमिया माइनर के चांसेस इसके में बढ़ जाएंगे। फर्ज कीजिए कि हीमोग्लोबिन A2 जो है वो 7% से ज़्यादा हो जाता है, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन A, तो इंटरमीडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फर्ज कीजिए कि A2 के लेवल इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन A कम हो जाता है, और साथ में हीमोग्लोबिन F भी आ जाता है, फीटल हीमोग्लोबिन नॉर्मली 0.8 to 2% होता है, या 4% हो जाता है, ये थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर उन्होंने जो डिसऑर्डर से जो हीमोग्लोबिन है क्वालिटेटिव वाले, उसको एक्सक्लूड कर लिया है। सिकल को एक्सक्लूड किया है, E को एक्सक्लूड किया है, D को एक्सक्लूड किया है, C को एक्सक्लूड किया है। अब आपके पास जो बच गए थैलेसेमिक सिंड्रोम बच गए। थैलेसेमिक सिंड्रोम्स जो होते हैं वो क्या है? दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। देखिए ना कंफर्मेशन हेमोलिसिस कैसे करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट पहले कराएं, हाइपोग्लोबिन लेवल रिड्यूस हो जाएंगे, रेटी बढ़ जाएगा। हीमोपैक्सिन लेवल भी कराते हैं, यहाँ पे नहीं कराते, बाहर के मुल्क में कराते हैं। तो ये जो होता है इंट्रावास्कुलर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है हीमोपैक्सिन, इसके लेवल जो रिड्यूस हो जाते हैं हेमोपेप्टोग्लोबिन के साथ। वरना जो है ना सिवियर होगा जितना हेमोलिसिस, उतना हेप्टोग्लोबिन तो ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा, सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो हेमोपैक्सिन को पैरेलल करके देख लेते हैं हमेशा, वहाँ पे होता है, यहाँ तो होता ही नहीं है टेस्ट।
यूरिन फॉर द बाइल पिगमेंट, आपको सारी बात है जितना ज़्यादा आप सब्सट्रेट देंगे उतना यूरोबिलिन ज़्यादा बनेगा, ये लिवर तो नॉर्मल है। तो इसलिए बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, यूरोबिलिन ये सारे बढ़ जाएंगे। कूम टेस्ट इसमें कराते हैं जब ऑटोइम्यूनिटी कैंसर हो, तो वहाँ पे तो ऑटोइम्यून कैंसर अगर है आप समझते हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कराते हैं देखने के लिए कि इसके अंदर आपको पॉलीकाइलोसाइटोसिस, मैंने जैसे पहले भी बताया था। ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ना बड़ी अजीब सी होती है। इमेच्योर आरबीसी नज़र आ रहे हैं रेटिकुलोसाइट काउंट की वजह से, आपको आरबीसी का जो साइज है बड़ा हुआ नज़र आएगा स्मेयर के अंदर, और स्फेरोसाइट भी कुछ नज़र आएंगे, कुछ इमेच्योर जो है ना, और भी हीमटो ब्लास्ट वगैरह ये भी नज़र आएंगे थोड़े से, बिकॉज ऑफ दी बोन मैरो हरी, यानी वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कंपनसेट करे। तो इसलिए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इसमें काम में आ जाता है। वरना बोन मैरो पे चले जाए तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाएगा, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है बोन मैरो, हेमोटोपोइटिक सिस्टम उसका कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। ये चीज़ें अगर कराते हैं तो हेमोलिसिस कंफर्म हो जाता है। हम जो कंफर्म करते हैं वो एलएफटी के जरिए, रेटिकुलोसाइट काउंट एपिग्लोबुलिन के जरिए, इससे कंफर्म कर लेते हैं हेमोलिसिस। अब हेमोलिसिस यहाँ तक पहुँचा दिया तो मैंने कहा कि डिसऑर्डर्स ऑफ द हीमोग्लोबिन क्वालिटेटिव वाले तो नहीं है, ये तो क्वांटिटेटिव वाले हैं। मोस्ट लाइकली थैलेसीमिक सिंड्रोम होगा ये। देखना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे उतरेंगे तो बात क्लियर होगी, वरना ये बात क्लियर कभी भी नहीं होगी। हमेशा याद रखिए कि ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता इसको एवेल्यूएट करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। लाइन का मैनेजमेंट ज़्यादा, अगर आपने थैलेसीमिया आपने डायग्नोज कर दिया चले, तो अगर माइनर है, इंटरमीडिएट है या मेजर है, डिपेंड करता है आपके फैसिलिटीज़ कितनी है, उस पर जो है डिस्कशन बाद में होगा। इसको मैनेजमेंट यहाँ पे पॉसिबल क्या हो सकता है, और रिसेंट एडवांसेस हैं इसमें कुछ जो आपकी हेल्प करते हैं। ये भी हमने सवाल किए हैं इम्तहानात में, या कोई पेपर लिखे गए हैं तो वो सुनाए। देखो ना इम्तहान में ऐसे ही होता है, रिसेंट एडवांसेस, या आपने कोई जर्नल में पेपर पढ़ा हो, हवाला दें उसका, और उन्होंने क्या बताया इसमें, क्या रिसर्च है, डिस्कशन किया है, तो लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लीजिए। तो आप इसी का आपको मैंने बता दिया था पहले भी, हीमोग्लोबिन इसका स्ट्रक्चर है अंदर मेन आरबीसी में, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है जब इसका टाइम पूरा हो जाता है। अब खेल शुरू होता है, हीम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्लोबिन का तो प्रॉब्लम है कि उसके अंदर या तो क्वालिटेटिव डिफिशिएंसी होगी कि ग्लूटामिक एसिड वेलाइन के साथ या वेलाइन ग्लूटामिक एसिड के साथ इंटरचेंज हो जाए वगैरह वगैरह, तो उससे हीमोग्लोबिनोपैथीज बन जाएंगी, उस तरफ चले जाएंगे आप। या ये है कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव डिफिशिएंसी हो जाए। लेकिन 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है अडल्ट में, लेकिन यंग पर्सनस में या आप बच्चों में या न्यूनेटल पीरियड में और भी चेन्स होती हैं, गामा चेन्स होती हैं, मिसाल के तौर पे कापा चेन होती हैं, डेल्टा चेन्स होती हैं, ये चेन्स भी होती हैं। जैसे उम्र बढ़ेगी, मेच्योरिटी में आएंगे तो अब हमें अल्फ़ा चेन्स हो जाती हैं और बीटा चेन्स हो जाती हैं। इसमें क्वांटिटेटिव डिफिशिएंसी हो जाती है, या तो इसमें कमी वाक़ई होगी या अल्फ़ा चेन में कमी वाक़ई होगी। ये वही स्ट्रक्चर था जिसको मैंने बारहा दिखाया है। तो 2 अल्फा 2 बीटा चेन है अडल्ट में। एम्ब्रियोनिक एज में फीटल फॉर्म्स कैन सब्स्टिट्यूट द अल्फा बीटा चेन फॉर वंस विद हायर ऑक्सीजन एफिनिटी, डिपेंडिंग करता है ऑक्सीजन एफिनिटी पर। जैसे गामा चेन में या डेल्टा चेन आ जाए या एप्सिलॉन चेन आ जाए या जीटा चेन आ जाए, तो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो फिर हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। तो वो आगे जैसे डिस्कस करके बता रहे हैं कि क्या है ये हीमोग्लोबिन ए में क्या होता है कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। ये याद रखिएगा हमेशा, नॉर्मली एग्जिस्ट इन आवर बॉडी ऑलमोस्ट 98 to 100% होती है, और इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। मगर A2 जो है जिसको मैंने कहा था, ये चलिए माइनर के लिए डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है,
उसमें नॉर्मल वेरिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, लेकिन एक परसेंटेज की हद तक इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 डेल्टा चेन, इसमें बीटा चेन नहीं होती, एंड इज फाउंड एट द लो लेवल इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन। देखिए अल्फा चेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है एक्यूट फेज रिएक्टेंट के तौर पर काम करती है और इंजूरियस है एंडोथेलियम के लिए, जबकि बचाती जो है वो बीटा चेन बचाती है डिस्ट्रक्शन से, टिश्यू डिस्ट्रक्शन से बीटा चेन बचाती है। तो आपने अल्फा को तो नॉर्मल कर दिया, डेल्टा चेन जो है ना उसकी जगह लिया है, लेकिन बीटा चेन को गायब कर दिया A2 में। तो अल्फा चेन को एक्सपोजर आप दे रहे हैं बॉडी को, इसका मतलब आप इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं एंडोथेलियम का। एफ क्या है? हीमोग्लोबिन एफ फीटल हीमोग्लोबिन प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स टॉप पे हैं और 2 गामा सब यूनिट्स बॉटम पे हैं, एज वेल एज देयर आर 4 हीम ग्रुप्स के अंदर होते हैं, 4 हीम के ग्रुप इसमें 4 होते हैं। तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन रिबन इज रेनबो कलर्ड फ्रॉम ब्लू टू रेड एंड टू सीटा। तो फीटल हीमोग्लोबिन HbF जो है, जिसमें अल्फा 2 और गामा 2 की चेन होती है, और इसके साथ जो है ना 4 हीम ग्रुप्स लगे होते हैं, इज द मेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ह्यूमन फीटस ड्यूरिंग द लास्ट 7 months ऑफ डेवलपमेंट इन यूट्रस एंड परसेंट इन द न्यूबॉर्न टू 2 to 4 months तक जो है ये हायर साइड पे होता है एंड रिड्यूसेस ग्रेजुअली इन लाइफ। अब रह जाता है 1-2%। अगर एक 31 ईयर्स का आदमी था तो हीमोग्लोबिन एफ जो नॉर्मली जो होगा उसमें वो ना होने के बराबर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैब के लिहाज से 1-2% होगा। लेकिन इसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी अच्छी है। बहरहाल इसके मुकाबले में हीमोग्लोबिन A2 के मुकाबले में इसकी ज़्यादा है, एक ही तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पावरफुल है ये कैपेसिटी रखता है फीटल हीमोग्लोबिन। अब ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या चीज़ है? अब ये हम जो बना रहे हैं ना पर्सन का फिनोटाइप क्या है उसको वो देख रहे हैं। जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप सॉरी, जीनोटाइप के लिहाज क्रोमोसोमल अरेंजमेंट के लिहाज से अगर डिवाइड करेंगे किसी को तो जीनोटाइप हो जाएगा वो, और क्लिनिकल फीचर के लिहाज से डिवाइड करेंगे तो फिनोटाइप हो जाएगा। तो अब ये होमोजाइगस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका आपको स्ट्रक्चर जो है जीनोटिपिक देखना होगा। इज अ पर्टिकुलर जीन दैट हैज आइडेंटिकल एलील्स और बोथ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसके अंदर आइडेंटिकल एलील्स ऑन 2 आइडेंटिकल एलील्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में, ये होमोजाइगस होगा। इट इज रेफर्ड टू कैपिटल लेटर XX फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। अगर डोमिनेंट हुआ है हर नस्ल में हुआ है, और 2 लोअर केस लेटर्स छोटा XS और रिसेसिव ट्रेट। अब ये रिसेसिव हो सकता है डिसऑर्डर जो एक यानी जो उसमें नस्ल में नहीं मिला लेकिन दूसरी नस्ल में मिल गया, तो एक को छोड़ के दूसरी नस्ल ये तीसरी नस्ल में आ रहा है, रेगुलर बेस पे नहीं आ रहा, डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट ट्रेट होता है या रिसेसिव ट्रेट होता है होमोजाइगस का। तो अगर होमोजाइगस है कोई तो उसमें आइडेंटिकल एलील्स होंगे हीमोग्लोबिन क्रोमोसोम्स में। ये इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपके पास जो है वो XY है फॉर एग्जाम्पल, या क्रोमोसोम 16 है या 11 है, अभी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो है आइडेंटिकल एलील्स होने चाहिए जीन में जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं इस डिजीज़ को। तो वहाँ पे जो है ना क्वांटिटेटिव रिडक्शन हो गया। या अल्फ़ा चेन का हुआ तो अल्फ़ा, मतलब बीटा चेन हुआ तो बीटा। और अगर फर्ज करें कि हर नस्ल में आता है तो डोमिनेंट हो जाएगा, और एक नस्ल छोड़ के आता है तो रिसेसिव हो जाएगा। इस चीज़ को समझ दीजिएगा होमोजाइगस को। जबकि हेटेरोजाइगस में एंड टाइम इन इंडिविजुअल हैज 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं इसमें, और जीन सेम एलील नहीं होती। तो इसके अंदर जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस कहते हैं इसको, इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हो जाएगा।
और ये भी जो है ना डोमिनेंट हो सकता है और ये भी रिसेसिव हो सकता है। और वो जो तो डिसऑर्डर हीमोग्लोबिन अगर होंगे तो हीमोग्लोबिन व्यतीत अगर क्वान्टिटेटिव होंगे और क्वालिटेटिव होंगे तो थैलेसीमिक सिंड्रोम्स हो जाएंगे। तो थैलेसीमिया सिंड्रोम जो है, जैसे मैंने कहा, ये तो क्वान्टिटेटिव डिसऑर्डर है, resulting imbalanced globin chain synthesis takes place, giving rise to excessive amount of the normally synthesized globin chain. ये अल्फा चेन या बीटा चेन, इनमें जो है कमी वाक़ हो जाए तो थैलेसीमियास कहलाएंगे। ठीक है ना, ये इस तरह से समझिए। तो इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव रिडक्शन ऑफ द ग्लोबिन चेन के अंदर हो, अल्फा में हो या बीटा में हो। इंसिडेंट ऑफ थैलेसीमिया पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड की बात ना करें। वर्ल्ड में तो आपको ये स्टेट में देखें ना आप, ग्रीन वाली जो जोन है सब फ्री है। इसमें जो रेड वाले हैं अल्फा थैलेसीमिया वाले हैं, और ये ब्राउन वाले जो मिलते हैं आपको वो अल्फा थैलेसीमिया वाले मिलते हैं। ये अल्फा थैलेसीमिया को उन्होंने बताया कहाँ होते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने थैलेसीमिया किन कंट्रीज़ में होते हैं, सिकल सेल एनीमिया किन कंट्रीज में ज़्यादा होता है, इसमें दिखाया गया। सी डिजीज़ कहाँ होती है। ई जो है ना, मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारे मुल्क में होती है। ये यहाँ पे इन्होंने ये बेल्ट है, ये वाली, इस बेल्ट में मैंने कई पेशेंट देखे हैं। इसमें इन्होंने बनाया तो नहीं है, इंडिया का जोन बनाया है, ये केरला का जोन है। लेकिन अब मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मेरी जो अपनी रिसर्च है और खान ने इसे सपोर्ट किया कि वो ये कहते हैं इस बेल्ट के अंदर जो है, ये देखें ये वाली बेल्ट जो है, इसके अंदर भी ई डिजीज़ ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने जो है ना वो थैलेसीमिक जोन शो किया है, ये सारा थैलेसीमिक जोन है। पाकिस्तान का एग्जैक्ट जो है ना प्रॉब्लम क्या है, इंसिडेंस क्या है कि एस्टिमेटेड अबाउट 5,000 to 9,000 चिल्ड्रन विद बीटा टाइप का थैलेसीमिया आर बॉर्न पर ईयर, ऑल्दो नो डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर अवेलेबल। अल्फ़ा जो है ना थैलेसीमिया की डायग्नोसिस करना आसान काम नहीं है, ये मैं अभी यही से बता देता हूँ। इससे पहले कि आगे चलें आप इस बात को क्लियर कर लें। द एस्टिमेटेड कैरियर रेट इज़, तो कैरियर जो स्टेट है इसकी, क्योंकि यहाँ पे मैरिजेज जो है कंसेंजेस होती हैं ज़्यादातर, तो 5 से 7% कैरियर स्टेट में चल रहा होता है। और विद 9.8 मिलियन कैरियर इन द टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन अगर लगा लें आबादी पाकिस्तान की तो 9.8 मिलियन कैरियर्स होंगे। अगर 9.8 मिलियन कैरियर्स हैं और 2 कैरियर की शादी हो जाए बस में, तो 50% जो है ना चिल्ड्रन अफेक्टेड हो जाएंगे। 50% का मतलब ये 4 अगर बच्चे हैं तो 2 को जो है थैलेसीमिया हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब मैरिज होती है तो अगर फैमिली मैरिज है तो दोनों को हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के देख लेते हैं, लड़के का भी लड़की का भी। अगर दोनों के अंदर जो है ना आ रहा है थैलेसीमिया, माइनर आ रहा है, स्टेट है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थैलेसीमिया माइनर है इसके अंदर आ रहा है तो फिर उसमें तो बिल्कुल ही गुंजाइश खत्म हो जाती है। कैरियर स्टेट में हम उनको बता देते हैं कि मैं इतने चांसेस बन ये आपकी फैमिली में रन करेगा, मर्जी है शादी करो, मर्जी है शादी ना करो। और अगर कैरियर स्टेट भी नहीं मिलती है तो फिर तो ओपनली हम कह देते हैं कि आप मैरिज कर लीजिए। लेकिन ये चीज़ें इम्तिहान में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाई क्यों कराते हैं इसको, कैसे रोक सकते हैं इसको। तो हाई रेट है ये तो बहुत ज़्यादा। आपको मालूम है थैलेसीमिया वॉक भी होती है, थैलेसीमिया की जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, फिर भी जो है ना ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि लोग बात किसी की मानने को तैयार ही नहीं है। देखें यहाँ पे इसमें में ख़ासतौर मुसलमानों में जो है ना जो प्रॉब्लम है वो 2 चीज़ों का है। एक तो ये वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, शादी क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। आपने ड्रामा में भी देखा होगा इसी तरह के मसले शायद, खालाजाद बहन है, चचाजाद बहन है, फला बहन है, तो उसने उसको पसंद नहीं किया तो इसने उसको पसंद कर लिया, या उसकी जो है वो जायदाद की विरासत की वजह से शादी करनी पड़ रही है। मसले मसाइल जो है ना, तो क्या है कि तनकीद अगर आप करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तहकीक, यानी इसको ये थैलेसीमिया कितना होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया ये होती है तहकीक, वो भी लैकिंग है।
मुसलमानों में बहुत कम लोग हैं जो तहकीक करते हैं, किसी चीज़ की भी बात कर रहा हूँ, उर्दू अदब ले लें, साइंस ले लें, साइंस के सब्जेक्ट ले लें, कोई तहकीक वहकीक नहीं होती। आप डिपेंड कर रहे होते हैं कि फ़ौरन नॉलेज आपको मिल जाए और उससे ही गुजारा करें बस। अब ये जो आप स्टडी देख रहे हैं ये बहुत लिमिटेड स्टडी है। इसमें इन्होंने बताया अगर ये पूरी टोटल पॉपुलेशन को कवर करते तो ज़्यादा निकल आएंगे, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस महंगा टेस्ट है, तो हर एक का तो करा नहीं सकते। तो आपको बजट बना के अगर आप कराएंगे तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे एक स्टडी के, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है इसको समझिए। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में हेटेरोजाइगोट और डबल हेटेरोजाइगोट आर नॉट इफेक्टेड। ये रिसेसिव डिसऑर्डर्स एक ऑटोसोमल इन्वॉल्व हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्रोमोसोम 16 है, 11 है, जो भी हुआ है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव उसको कहते हैं। हेटेरोजाइगोट डबल हेटेरोजाइगोट आर नॉट इफेक्टेड। हेटेरोजाइगोट अगर है वो अलग है, वो अलग है। डबल हेटेरोजाइगोट्स हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे इनहेरिटेंस में। लेकिन अगर होमोजाइगोट है और कंपाउंड हेटेरोजाइगोट्स, मिसाल के तौर पर थैलेसीमिया मेजर था लड़की को, आपने शादी कर दी थैलेसीमिया ट्रेट से या माइनर से, तो वो हेटेरोजाइगोट कंपाउंड हेटेरोजाइगोट बन जाएगा और वो इफेक्ट करेगा, बच्चों में इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो है ना चांसेस ऑफ थैलेसीमिया इन द सेम फैमिली ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? हाउ टू नेम थैलेसीमिया। देखिए इसको डिस्क्राइब किसा करते हैं। आपको मालूम है अल्फा 2 2 चेनें होती हैं, बीटा की 2 चेनें होती हैं। अगर जो है ना रिड्यूस एब्सेंट अल्फा ग्लोबिन चेन हो जाए, कम हो जाए उसकी क्वांटिटी, या एब्सेंट ही हो जाए, तो अल्फा थैलेसीमियास कहलाते हैं। या अगर बीटा ग्लोबुलिन की चेन जो रिड्यूस या एब्सेंट हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया कहलाते हैं। ये 2 मेन थैलेसीमिया है। या रिड्यूस और एब्सेंट गामा ग्लोबिन चेन जो कि ज़्यादा अल्फा में लीग होती है गामा, तो उसको कहते हैं गामा प्रीडोमिनेंट। अगर गामा चेन इन्वॉल्व होगी तो गामा थैलेसीमिया हो जाएगा, जो अल्फा थैलेसीमिया के करीब है। फिर रिड्यूस और एब्सेंट डेल्टा ग्लोबिन चेंज हो जाए तो डेल्टा थैलेसीमिया हो जाएगा। ये वो फीटल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। और रिड्यूस और एब्सेंट हो जाए, अल्फा भी कम हो जाए, डेल्टा भी कम हो जाए, या बीटा भी कम हो जाए, तो उसको कहते हैं अल्फा बीटा और डेल्टा थैलेसीमिया, जो कि बहुत रेयर है। ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, और ये भी बहुत रेयर है। तो इन 3 को तो पर छोड़ दें आप, जो हमारी आबादी जो है इसमें ये है लेकिन बहुत कम है। अल्फा थैलेसीमिया अगर टोटल थैलेसीमिया आप निकाल लें तो उसमें से 25 से 20% तो होगा, ये मिस हो जाएगा। इसको आसान नहीं है डायग्नोसिस बनाना। बीटा थैलेसीमिया की डायग्नोसिस आसान है, क्योंकि इसकी आसान है तो ये तो जल्दी पकड़ लेते हैं आप। इसके पकड़ने में आपको जद्दोजहद और नॉलेज चाहिए होती है, तो फिर ये पकड़ा जा सकता है, वरना नहीं पकड़ सकते। वो आदमी लटका रहता है वन में। ये वाले थैलेसीमिया को छोड़ दें आप, और अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया को डिटेल में स्टडी करें, और इतनी डिटेल होनी चाहिए कुछ भी ना बचे, और सारा का सारा जो है ना वो नॉलेज आपको आ जाए। तो क्या हुआ अब तक का डिस्कशन में कि कॉमन टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया क्या है? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। फिर नेक्स्ट सेशन है उसमें ये बताया जाएगा कि अल्फा थैलेसीमिया, मैंने कहा कि उसको पकड़ना भी मुश्किल है और उनको इंसिडेंस भी कम है, पहले तो उसको समझ लें, और फिर आप बीटा थैलेसीमिया को मज़ीद डिटेल में जाके बताएं। तो सेशन जो हमारा आएगा वो सेशन 4 है या 5 है, उसके बाद जो भी आएंगे उनमें इनको डिस्कस किया जाएगा। यानी हमारा डिस्कशन हेमोलिटिक एनीमिया पे 6-7 सेशन में कंप्लीट होगा। अगरचे ये वक्त तलब है, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन ये आपकी समझ में आ जाएगा। आप किताब से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा।
आप डिस्कशन करेंगे आपस में, बहस मुबासा करेंगे या तहकीक करेंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग जो आए थे FCPS देने, देखें FCPS एग्जामिनेशन लास्ट एग्जामिनेशन, उसके बाद कोई एग्जामिनेशन उससे बड़ा है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या नहीं, कहीं पे भी नहीं है। फेलोशिप का मतलब ख़त्म, फिनिश्ड। अब आपको हम कैसे यानी वो सर्टिफाई करें अगर आपको नहीं आता बीटा थैलेसीमिया सही तरह, या आपकी समझ में बेसिक्स ही नहीं आई उसकी, तो कम से कम मैं तो ऐसे आदमी को पास नहीं कर सकता। वो ये नहीं बता पा रहा कि बीटा थैलेसीमिया में की टाइप्स कौन सी हैं, या ये कैसे वजूद में आता है, या इसकी इनहेरिटेंस क्या होती है वगैरह, या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलो इसमें तो फिर भी माफ़ी की गुंजाइश है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये फिर भी आना चाहिए क्योंकि फेलो का मतलब ये है कि आप नॉलेज से भरपूर हैं। तो इसको आगे देखते हैं। फिर अल्फा थैलेसीमिया को अलग और बीटा थैलेसीमिया को अलग बताया जाए ताकि ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए मेरे को और लटका हुआ हवा ना रहे। उम्मीद है कि आप, अगरचे के वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, लेकिन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट को, तो आप मेरी उसको देखने की कोशिश करें, मेहनत को। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी मेहनत जो है कारगर साबित होगी अगर इन लोग सुने तो। हुमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।